So how many of you did yesterday's practice? Heart magic, miracles. What did you feel with the cutout? Did you had that feeling? आज प्रैक्टिस किया था मंजू मैम? मैम कल प्रैक्टिस किया था। आज सिर्फ मैंने रोज की तरह ब्लेसिंग्स ही लिखा है। बट बिलीव मी, यस्टरडे व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग विथ यू, मेरे आंख से थोड़ा पानी आया। ग्रेट। देखो, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी डे। देखो, ये हार्ट मैजिक का आप जितना अपने ड्रीम्स को लेके करोगे उतना जल्दी आप देखोगे इट इज गोइंग टू गिव यू द इफेक्ट। गुड इवनिंग मैं मैम मंजू मैम। हाँ, बोलिए मंजू मैम। मैम एक प्रैक्टिस रोज करती हूँ। जैसे इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज अ प्रैक्टिस की एक सिचुएशन लेना है जो एक नेगेटिव सिचुएशन से हम पॉजिटिव लिखते हैं, वो मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। दैट आई प्रैक्टिस डेली अलॉन्ग विद द ब्लेसिंग्स, वो सब तो है। बट ये मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ कि एक नेगेटिव सिचुएशन जो हमारे साथ हुआ है उसमें भी पॉजिटिव लाके वो लिखना है, वो मैं रोज लिखती हूँ। ग्रेट। सो रमेश जी, आपने किया था प्रैक्टिस कल? रमेश जी रोज मुझे मैसेज भेजते हैं सेशन एंड होने के बाद, धन्यवाद प्राइवेट में भेजते हैं कि सेशन, अच्छा सेशन के लिए रोज धन्यवाद। तो रमेश जी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। रोज एनकरेज करते, रोज मुझे बोलते हैं कि सेशन काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। यस, वी हैव मंगल मैम टुडे विद अस। सो Yeah, I डॉक्टर wanted मंगल to मैम, share. हाउ आर यू? Yeah, I'm fine, absolutely. So Actually, Dr. Mangal I ma'am has got some. connected with Maria ma'am, Yes, sharing, Mangal great sharing. Mm. ma'am. So I got connected to Maria ma'am through the landmark of, seminar. I have a breakdown some angel. It is like it's a Maria through Maria ma'am, and we got conversation on Krishna Janmashtami. It was some I don't know, but it is something happens in that day only. And I joined the book. I joined the book, but I was just listening the thing. Madam, then 2 to 3 months I was just listening, I was doing the things. But when Maria ma'am started her own book in November 20, then I actually got into that and I started writing my gratitudes, blessing, manifestation. And after that, a miracle happens in my life. I manifested my operation. It was awesome. I recovered within 7 days. It was a major operation in my life. But whatever she told me for the forgiveness, uh, to give the gratitude to your body. I have written every day I used to write to give the gratitude to your like blessing to your hospital wherever you are going to operate. So it is like I do not have had a single pain during that period. So I felt ki, yeah, this is really magic. And I was writing my gratitude also. I recovered very fast. I shared that thing also. But I was writing the gratitude from a hospital कि मेरी केबिन में क्या क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए. And yesterday I came to my cabin and the AC was there. It was the wow. Without saying anything to my husband, nothing. Just universe did it because I have given thought to the universe कि I want this in my cabin. So it is like Wow. awesome for me. And every day the magic happened. Yesterday I have a thought of worry. I converted the thought and I give a blessing to my patient also. And today morning the patient is absolutely fine. My boss, whatever I said, Hoponopo prayer. So it is like there is I do not have to say anything to anybody. It just happened according to my way. So how it is really magic, no? I don't have to say not a single word. I used to say negativity. कुछ नहीं बोलना है. You just write it down, bless it, and whatever you want, you will get it. That I will like 100% sure about the things. So thank you, Maria, again.
And I'm sorry, I was Thank, like in the thank you, evening Mangal ma'am. OPD, Thank so you. it is very difficult for me. I know, I Yeah, can understand, thank but you. thanks for sharing. Thanks for sharing. God bless you. Yeah, Good health. So, Dr. yeah. I Mangal, will attend whatever the time I have, then yeah. yes, definitely. You can go afterwards if you want to leave. She is Dr. Mangal, and she had got connected with me through Landmark course. And we were in one group when we used to have our seminars and all. And one day I just heard her and I just told her, ping me up, separately. And then a conversation started. And then I told her that why don't you join the magic book? And I made her join the magic book. And then she joined my sessions. And then afterwards, like she's creating miracles every day. That is what I know. Today, what I Yeah. see her, and when I had met her, complete different person, complete different personality. Totally. She's Yeah. smiling, she is happy. She said, I don't have any worry now. Because now she's understood Mm. the formula, ki whenever something happens, Yeah, what to do. So that is how the magics work. That is how the magics work. that's true. But you have to believe, you have to practice. When you have that belief and you do your practice religiously, you will see the difference. So let's join our hands, close our eyes for the prayer. Let's call upon the universe. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath and relax your body. Take another deep breath. Focus on your mind, on your heart, and relax. Thank you, universe, for all the abundance that is flowing towards me. Thank you, universe, for the intelligence that has brought me into this magic book, and I'm understanding the power of gratitude. दिल से धन्यवाद इस शरीर का जिसके हर सेल में रोज ऊर्जा भर रही है और वो हर सेल तक पहुंच के मुझे एक नया जीवन दान दे रही है. Thank you for all the blessings in the areas of health, money, career, and relationships which are flowing every day towards me. Thank you for giving us that knowledge and understanding that we are one here and we have come here to understand the power of gratitude so that we enlighten other people's life and fill their life with joy and happiness. Thank you. Thank you. Thank you. So let's start. I hope you all have practiced yesterday. कल का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था. हार्ट मैजिक. बाद में किसको किसको को अच्छी फीलिंग आई, कुछ अच्छा सपना दिखा रात में? देखा क्या सपने ही नहीं आते? Okay, so yesterday we did the heart magic practice and don't take it very lightly. देखो ये practice तो आपको orally करनी है. आप किधर भी बैठ के कर सकते हो. आप कैंटीन में बैठे हो उधर बैठ के कर सकते हो. आपके ऑफिस डेस्क पे भी बैठ के कर सकते हो. मंजू मैम, यू डोंट नीड एनीथिंग, राइट? तो आप बैठ के करो ना. उसके ऊपर आप बैठ के करो. जहां पे भी हो, जो जगह पे हो उसके ऊपर बैठ के करो तो वो ज्यादा अच्छा होता है. जहां पे भी, यानी आप बेड पे बैठे हो, आप टीवी के सोफे पे बैठे हो, तो बिफोर यू वॉच द टीवी फर्स्ट पुट योर माइंड ऑन योर हार्ट. फील दैट 2 सेकंड के लिए एटलीस्ट अपने हार्ट को फील करो और उससे बात करो एंड यू विल सी द डिफरेंस. सो डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स. लुक एट द पिक्चर. कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे? पिक्चर कौन सा दिख रहा है? पिक्चर में दिख क्या रहा है आपको? Think it's a reflection of a window, I think. या इट्स अ डोर. इट्स अ Yes. डोर एंड उसके अंदर से आप देखोगे लाइट आ रही है, राइट? इट इज अ डोर
which is showing you a light. So every day we are moving to one step ahead. हर रोज एक नया स्टेप सीख रहे हैं, एक नया प्रैक्टिस सीख रहे हैं हम, ताकि हम हमारी लाइफ को और सी दिस आई टोल्ड यू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 till the chapter number 22 we are doing the present things, we are increasing our skills. हमारी स्किल्स बढ़ रही है इसमें. वी आर अप्लाइंग दीज टेक्निक्स एवरी डे टू इंक्रीज आवर बिलीफ. पहले देखो हमको ग्रेटिट्यूड सिखाया, फिर हमको बिलीफ सिखाया गया, राइट? एंड नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज वर्किंग. सो इतना सिस्टमैटिकली ये बुक जो है वो प्लान किया गया है. You say grace before meals. So today's chapter is magnificent outcomes. What does magnificent mean? Who will tell what is the meaning of magnificent? Magnificent का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं Huge, पता? very big, हाँ? huge, very big. Very big. Magnificent means सबसे अच्छा. Outcomes means परिणाम, means जो हम कोई भी चीज में अच्छा परिणाम चाहते हैं, जो भी सबसे बेस्ट, जो हमारे लिए अच्छा है. आज आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इस चीज को अप्लाई करके हम अपने कामों में अच्छा अच्छा परिणाम ला सकते हैं. अब अच्छा परिणाम क्यों लाना है? देखो हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आ गए हैं, हमको हमारा बिलीफ सिस्टम अभी बढ़ गया है, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दोस टेक्निक्स, और उसका परिणाम क्या हमको मिलता है. जब वो परिणाम मिलेगा तो ही आपको बिलीफ आएगा ना. So today we are going to understand that. So you say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera. And grace before the play and pantomime. And grace before I open a book. And grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing. And grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874-1936 writer. He's the writer. What is the writer saying? That we all might be saying, thank you before meals. सबके religions में, rituals में होता है, right? This is already there. We have been taught कि खाने से पहले हम thank you बोलते हैं खाने को. But all right, but he's saying that I say grace before the concert and the opera. Before any concert and opera, before I play or I do anything, before I open a book, अगर मैं book पढ़ने भी जाता हूँ तो मैं पहले thank you बोलता हूँ. If I'm doing any sketching, painting, swimming, वो बोलते हैं कि मैं कोई भी चीज, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज करने से पहले, जैसे स्केचिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, फेंसिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, कुछ भी कर रहे हो, उसके पहले ही आप थैंकफुल हो जाओ. उसके पहले ही आप थैंकफुल हो जाओ. So I dip the pen in the ink. Yani before he starts writing his book, he's a writer. So he says that before I start writing my book also, I already say thank you that my book is done. So today we are going to learn how we can bring this into our life. See, we all want good outcomes to everything we do. In giving thanks, before he performed an action, the writer Gilbert Chesterton, je upar jo tha, used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. He used what? He used gratitude to guarantee the outcome he wanted. The outcome he wanted, right? So what is the areas where you want the magnificent outcome? We are going to learn that. आपका कोई भी area हो, even your daily work, even your daily meetings, even your projects to be completed, very simple thing of your daily housework, right? आपकी रोज का, जैसे हमने मैजिकल टू डू लिस्ट में किया था, but this is something different. You will understand today what it is. You will have had the times when you thought to yourself, I hope this goes well. I hope this turns out okay. Or I'm going to need a lot of luck. कितनी बार हम बोलते हैं ना, काश यार मेरी जिंदगी ऐसी होती, काश ये ना आज मेरा बॉस ऑफिस में ही नहीं आए. कितनी बार बोलते हैं, रोज चिक चिक करता है, काश आज मेरा बॉस ऑफिस में ही नहीं आए. होता है ना, बोलते हो ना. देखो मंजू मैम हंस रहे. सो
हमारे माइंड में ऐसे कितनी बार ख्याल आते हैं, कोई रिलेटिव्स आने वाले रहते हैं, हमको ऐसा लगता है काश ये आई नहीं यार, घर पे कहाँ आ रहे हैं। कितनी बार होता है, यू वांट टू अवॉइड सच सिचुएशंस। और फिर आपकी मीटिंग होती है, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं मेरी मीटिंग सफल होगी क्या, नहीं क्या होगा पता नहीं, मैं कैसे करूंगी या करूंगा मेरी मीटिंग, आज मेरे मीटिंग है, आज मुझे बॉस को जाके इंटरव्यू देना है, आज मुझे ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है, मैं कैसे करूंगा। आई होप, फिर आप अपने कलीग्स को बोलते हो ए विश मी बेस्ट ऑफ लक, हाँ विश मी बेस्ट ऑफ लक, आई एम गोइंग टू डू द प्रेजेंटेशन टुडे। कितनी बार हम बोलते हैं, हम दूसरों से बेस्ट ऑफ लक मांगते हैं, या तो फिर हम भगवान को बोलते हैं यार मेरा आज ये काम पूरा कर देना, मैं तेरे पास इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, राइट। बट हियर शी इज एक्सप्लेनिंग टुडे इन दिस चैप्टर कि वो पावर हमारे अंदर है, what we want we can create। all these thoughts are hoping for good outcome to a situation। जब हम ऐसे बोलते हैं ना काश ये अच्छा हो जाए, काश यार मुझे वो ड्रेस मिल जाए जो मैंने उस दिन वो मॉल में देखा था, राइट। बट अगर आपको कोई चीज चाहिए और आप वो चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देते हो, आप देखोगे कि वो आपने जो चाहा, आपने जो बोला वो हो गया ऑन टाइम। So I'm going to need a lot of luck, you say। all these thoughts are hoping that हम कभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो अच्छा हो जाए, यानी मुझे जो चाहिए वो मेरे मन के जैसा हो। But life doesn't happen by chance or because of the stroke of luck। The laws of universe operate mathematically to the finest possible degree। that is something you can count on। किस किसने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ा था? किस किसने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ा था? प्रशांत जी, मैथ्स पढ़ा था? Yes, ma'am. मैथ्स पढ़ा था ना? क्या Hmm. लगाते थे हम? कोई भी सम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते थे? वी पुट अ फॉर्मूला ना। Mm-hmm. यू हैड अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, राइट। Correct. यू कुडंट पुट एनी रॉन्ग फॉर्मूला ना टू गेट द आंसर, Mm-hmm. राइट। हम कोई रॉन्ग फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते थे ना। यू हैड टू पुट वट एवर द लॉ और वट एवर एनी एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स एनीवन कैन गिव मी, के सब भूल गए? मैथ्स में अपने बच्चों को कराते होगे ना, लॉ, वी वर्क थ्रू लॉज इन मैथ्स, राइट। वी वर्क वी वर्क थ्रू लॉज। हमने लॉज सीखे थे, उसके अंदर करके हम वो सॉल्व कर पाते थे, राइट। प्रॉपर्टी सीखे थे, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सीखा था हमने। सो हियर ऑल्सो anything what is happening, the laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree। here she is talking about the laws of the universe। laws of the universe का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में सीखा था दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, यू नो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, every action has an opposite reaction। so the laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree, and that is something you count on। आप कोई भी चीज कोई भी देखो, if you go to see the planets, if you go to see the sun, it is placed at a proper distance, right। अगर सोचो वो सन एकदम नजदीक होता तो क्या होता अर्थ के। so everything whatever you know we are doing, example you want to bake a cake, right, or you're trying out a recipe, don't you take exact measurements and then make that thing। अगर आपको केक भी बेक करना है, राइट, तो what are you going to do? एंड एग्जाम्पल ऑफ अ टेलर, चलो टेलर क्या करता है, अगर उसको कपड़े बनाने में वो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेगा तो ही राइट माप के कपड़े बनेंगे ना। इफ ही डजेंट अप्लाई दैट फॉर्मूला, अगर वो बोलेगा मैं सिर्फ लेंथ और लेंथ ले लेता हूं तो आपका ड्रेस बन जाएगा, हो जाएगा क्या? यू ही विल टेक प्रॉपर शोल्डर, ही विल टेक योर कॉलर, ही विल टेक योर नेक, ही विल टेक योर चेस्ट, ही विल टेक योर वेस्ट, ही विल टेक योर हिप, एंड ही मेजर्स एवरीथिंग, यू नो द लेंथ। so that time he is able to create that dress। so same way when we want to create something we have to follow the formula। and जब आप formulas को practice करते हो you are able to create। so before creating any work हमको जो परिणाम यानी चाहिए, ओके हमको जो ये चाहिए उसकी हमको गारंटी मिल जाती है कि यस ये काम तो होगा ही होगा।
Okay, so how you are going to use this, we are going to see. A pilot doesn't hope that the laws of physics will work during his flight, will keep working during his flight. See, a pilot doesn't hope that the laws of physics, right, will keep working during his flight because he knows the laws of the physics will never fail. वो डाउट नहीं करता, वो होप नहीं करता कि आई होप लॉज ऑफ द फिजिक्स विल वर्क, ये फ्लाइट मेरा बराबर जाएगा, किधर रुकेगा नहीं, किधर चल, ये नहीं होगा. बट ही नोज दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स विल नेवर फेल, क्योंकि वो लॉ अप्लाई कर रहा है. यू डोंट गो इन टू योर डे and hope that the law of the gravity will keep you on the ground so you don't float on off into the space. आप बिलीव करते हो, राइट, कि ग्रेविटी मुझे होल्ड करेगी जब मैं पैर नीचे रखूंगा जमीन पे. सो यू नो दैट देर इज नो चांस एट प्ले एंड ग्रेविटीज लॉ विल नेवर फेल. गारंटी होती है ना कि ग्रेविटी का लॉ आपको फेल नहीं करेगा. आप इतना बिलीव होता है कि मैं अगर जमीन पे पैर रखूं तो मुझे जमीन पे खड़े रखेगा वो, राइट. Where else we know that the earth is rotating. So if you want magnificent outcome, बेहतरीन परिणाम, यानी मेरे काम में जो मुझे अच्छा चाहिए वो, if you want magnificent outcome to everything you do, to see, she's saying to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. So then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction, यानी जो law of attraction का rule है. And वो rule क्या है? Gratitude. That means you have to use your thoughts. क्या क्या apply होता है? Thoughts, feelings, to attract the magnificent outcomes to you. And being grateful for the magnificent outcome is one of the simplest way to do it. Laws में क्या आता है? हमने स्टार्टिंग में सीखा थॉट्स, राइट. वी लर्न ना थॉट्स एंड फीलिंग्स. टू अट्रैक्ट एनीथिंग वी शुड हैव थॉट्स. पहले वी थिंक, राइट, देन वी बिलीव, वी फील इट, एंड देन यू आर एबल टू मैनिफेस्ट इट. सो लॉ क्या बोलता है कि यू हैव टू यूज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स to attract magnificent outcomes to you. You have to believe. The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. आपको कोई भी चीज में जाना है, कोई भी प्रॉब्लम में जाना है, देखो हर चीज इस कायनात में है ना अपने आप काम कर रही है. जैसे जो भी वेजिटेशन उगता है, जो जो ट्रीज जहां पे उगेंगे वो वही एरियाज में उगते हैं, राइट. You cannot have dense forest in the city areas. Can you have that? Do we have oceans in the city areas? No. The appropriate place, the appropriate, even Excel sheet, when you are working on the Excel sheet, there are formulas, right? और अगर आप वो formulas को लगाते हो, then you get the exact whatever the result you want. If you don't apply those formulas, does that Excel sheet work also? Who are working on the Excel sheets, they might be knowing it. So you have to understand कि today when you apply the simple technique, ये दिखेगी बहुत सिंपल सी, मैजिक फुटस्टेप, मैजिकल टू डू लिस्ट, इसकी प्रैक्टिस में पीपल फील अरे उसमें क्या है, खाली लिस्ट तो लिखनी है, अरे उसमें क्या है, खाली थैंक यू तो बोलना है. बट द रियल practice is in these small practices only. The real magnificent outcome, the real outcome, if you want the results what you want, वो सब इसी में आने वाले हैं. Okay, so you could be grateful for the magnificent outcome to work, the meeting, job interview or the exam, the magnificent outcome to the sports game. आप sports game खेलने जा रहे हो, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी कोई एग्जाम है सॉरी, आपका कोई फोन कॉल आने वाला है, राइट, or you have to catch up with a friend, see your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about your behavior, or the heart to heart with your partner. आपको जो चाहिए, आप एक्सरसाइज रूटीन में जा रहे हो, आप पहले से बोलो आज मेरा एक्सरसाइज बहुत अच्छा हो,
I'm able to do very nicely. So thank you for the magnificent outcome of this. आप सडनली ऐसा होता है ना कि किसी का कॉल भी आ जाता है तो आप बोलते हो आज पता नहीं इसने क्यों कॉल किया रहेगा, बिफोर टेकिंग द फोन ओनली हम क्या बोलते हैं, पता नहीं इसने क्यों कॉल किया रहेगा। आज आपकी कोई फ्रेंड का फोन आ गया या आपकी कोई ऐसे रिलेटिव का कॉल आ गया और आपको उससे बात नहीं करनी, तो आप क्या बोलते हो, पता नहीं आज क्या, पता नहीं क्या बोलने के लिए कॉल किया, या आपकी ननन ने ही कॉल कर दिया, तो आप बोलते हो ना कि पता नहीं आज क्या बात करने के लिए कॉल किया होगा। तो उस बिफोर यू नो मेक assumptions of something wrong and thinking about something negative, first only say that it is going to go very well. थैंक यू, आई एम गोइंग टुडे फॉर शॉपिंग, मेरा शॉपिंग बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, आपको कोई ड्रेस चाहिए, आपको बहुत वो ड्रेस पसंद आ गया है और आपके मन में है कि मुझे वो लेना ही है, सो राइट डाउन फॉर दैट, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दैट न्यू ब्लू कलर ड्रेस विच आई एम गेटिंग इन माई बजट। तो आपके आपके मन में जो बजट है ना तो आपको उसमें ध्यान में आएगा कि मुझे ये बजट लगानी है। मेरा जब मैंने टीचर्स इंस्टीट्यूट का स्टार्टअप किया था, तभी मैंने जो बुक्स प्रिंट कर रही थी तो मैंने ऐसे बोला था कि प्रिंटर मेरे पास से इतना ही पैसा लेगा, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, एंड यू वॉन्ट इमेजिन ही टुक एग्जैक्टली दैट अमाउंट। तो यू हैव टू बिलीव कि आप जो मांग रहे हो ना वो चीज होगी पहले तो यू कैन अप्लाई दिस टू एनीथिंग। आपकी आज जॉब मीटिंग है, आपको जाके कोई प्रिंसिपल से मिलना है, आपको किसी की एग्जाम्स कंडक्ट करनी है, आपको कुछ भी करना, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, आपके घर में कोई फंक्शन है, और हम सुबह से कैसे होगा कैसे होगा, पता नहीं यार ये अभी तक नहीं आया, कैसे होगा कैसे होगा, अभी तक नहीं आया, हम क्या करते हैं, वारी, टेंशन, स्ट्रेस। इंस्टेड यू जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा आज का फंक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, सब मेहमान इतने खुश होके जा रहे हैं, आज का खाना इतना अच्छा बना है कि सबने उंगलियां चाट चाट के खाया है। अगर आपने सिर्फ माइंड में भी ये बोल दिया, लिखा भी नहीं, आप देखोगे क्या फर्क पड़ता है। इमीडिएटली दैट वर्क गेट्स डन इन दैट वे व्हाट यू हैड थॉट। जैसे मैंने कल बता रही थी कि मैंने सीट के लिए भी मैंने बोला था, फ्लाइट की सीट के लिए, कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दैट आई एम गेटिंग द सीट राइट इन द फर्स्ट, लाइक नियर द विंडो, तो मुझे फर्स्ट सीट ही मिल गई थी। सो दैट वे यू हैव टू apply it and see the results. So you could be grateful for the magnificent outcome जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, प्लम्बर का काम चल रहा है, यू आर एड्रेसिंग सम ट्रेड पर्सन, आपका कोई मीटिंग है, आप बिजनेस कुछ किसी के साथ कर रहे हो, पहले से ही बोल दो। कोई प्रॉब्लम हो गया घर में, ब्रेकडाउन हो गया, गीजर बंद हो गया, पहले से ही बोल दो थैंक यू दैट माई मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई गीजर इज ऑलरेडी रिपेयर्ड वेरी नाइसली। इतना ही करना है आपको, और आप देखोगे कैसे किस तरीके से यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू टू फिनिश दैट वर्क। द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ फैमिली आउटिंग, कॉन्वर्जेशन विथ योर चाइल्ड अबाउट देयर बिहेवियर, आपको बात करने के लिए ये हो रहे हो आपके बच्चे के साथ, इज अ टीनेजर, ही इज अ टीनेजर और समथिंग स्मॉल, आपको बात करनी, पर आपको ऐसा हो रहा है मैं बात करूंगा तो बच्चा चिढ़ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, माइंड में ऐसा आता है ना। So before you start conversing only with your child, whether teenage, adult, small, आप पहले से लगा दो thank you for the magnificent outcome कि whatever I'm saying, my child is listening to me. Whatever I'm saying, my daughter is listening to me. Whatever I'm saying, my son is listening to me and understanding. आप जितना ऐसे बोल के लिख दोगे, I mostly believe in writing. The more you write, you see the more miracles. The more you write, you see the more miracles. Ma'am, a question if I can interrupt. Yeah. Yeah. So जो normal जो thank you जो gratitude का है versus this magnificent outcome, can you just tell me what is the difference? मतलब is it that we are already anticipating the outcome? But that is Yes. what we've been doing now, right? Even last previous classes वही था ना? Is there a difference? I'm not able to make out. See, what is the difference is that there are few things, which are not happening. Okay. Like you have a meeting, the meeting got cancelled, or you have to go and meet your boss and something happened and you couldn't speak. You wanted to speak about your hike. You wanted to speak that you want an increment and you couldn't speak, So before you go, you should put this magnificent outcome.
कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट आई हैव स्पोकन टू माय बॉस वेल एंड आई हैव गॉट द इंक्रीमेंट। तो आपने वो आउटकम वो लगाया कि जो आपको चाहिए, नॉट कि आपके बॉस को जो चाहिए, मुझे जो चाहिए उसका परिणाम मैं कैसे ला सकता हूँ। सो दीज टेक्निक्स आर गिवन, एवरी डे वी आर स्टेपिंग वन बाय वन, अहेड, एक स्टेप आगे बढ़ रहे, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट योर बिलीफ सिस्टम इंक्रीजेस देयर। आपका बिलीफ जब बढ़ेगा ना, तो ही आपको यकीन होगा कि हाँ ये चीजें होती है। जब आप ऐसा लिखोगे, जब आपका मैग्निफिसेंट आउटकम कंप्लीट होगा, एंड देन यू विल रियलाइज यार सच्ची ये वर्क होता है। So Okay. that is the difference. These are all practices. मैंने बोला ना 12 चैप्टर से लेके 22 तक के चैप्टर्स आर ऑल प्रैक्टिसेस विच आर बिल्डिंग। हमने स्टार्ट बेस से की थी, जो स्टार्टिंग में हमने पास के ग्रेटिट्यूड कर करके बेस बनाया था। नाउ यू आर मेकिंग वन फ्लोर ऑफ योर बिल्डिंग एंड मूविंग अहेड टू योर ग्रेटिट्यूड बिल्डिंग। सो दीज प्रैक्टिसेस वहां आपको लेके जाती है। तो यू हैव अ कॉन्वर्जेशन, यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ योर चाइल्ड, बट आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है, कुछ क्या पता नहीं, मैं बात करूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, या मैं बॉस से जाके बात करूंगा या कलीग से ऐसे कुछ बोलूंगा तो गुस्सा हो जाएगी या हो जाएगा। तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस मैग्निफिसेंट आउटकम इवन फॉर योर डेली लाइफ थिंग, दैट टुडे आई एम रीचिंग ऑन टाइम, यू कैन पुट मैग्निफिसेंट आउटकम। Like whenever I go for my this QCI observations, quality council ka, I always say, so thank you for thank you for the magnificent outcome of my observations, because they are going very well and on time. So I finish on time. I notice that I finish on time. So when I'm leaving out of that school also, I say thank you, yaar, everything went on time. So you could be grateful for the magnificent outcome to purchase. You will be making, you want some dress, or you want some birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone. आपको कोई सेल फोन लेना, आपको लैपटॉप लेना, जैसे धारा जी को लैपटॉप लेना है, तो अगर वो पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगा ले साथ में, ये भी कर ले, तो इट विल मूव मोर फास्टर। सो टू चूज अ न्यू सेल फोन, न्यू कारपेट, न्यू ड्रेप्स, आपको कर्टन्स लेने हैं, रिनोवेशन करना है, एनीथिंग इन योर हाउस, you could be grateful for the magnificent outcome for the reservation at a restaurant or a great seats for a concert। आप कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हो और आपने सोचा कि मुझे यही सीट मिलनी चाहिए, तो आपने लिख दिया थैंक यू फॉर दिस फ्रंट सीट्स, एंड यू विल सी, यू विल गेट दैट, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दैट आई हैव गॉट दीज सीट्स। एंड द मैग्निफिसेंट आउटकम टू योर डेली मेल, द डेली ईमेल्स और योर टैक्स रिफंड फॉर द ईयर। आपको अगर टैक्स रिफंड भी चाहिए तो आप पहले से लगा लो, thank you for the magnificent outcome of my tax refund this year, and you will see the magic. So if it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, see, if it helps you to believe, if she's saying, if it helps you to believe in the magical power of gratitude, create magnificent outcomes, and you can wave your finger through the air and imagine that you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently। तो कोई भी काम होने वाला है, कोई भी अभी आपके घर में फंक्शन है, या कोई वेडिंग है, या आप कहीं बाहर जाने वाले हो, आपकी कोई किटी पार्टी है, आपके फ्रेंड्स को मिलने वाले हो, तो आप पहले से वो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो कि आज मैं मेरे फ्रेंड्स को मिली हूँ और आई एम रियली एंजॉइंग विथ ऑल माय फ्रेंड्स एंड आई एम कमिंग बैक हैप्पीली। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि लोग किटी पार्टी के लिए भी मिलते हैं, फ्रेंड्स भी मिलते हैं, तो झगड़े हो जाते हैं, एंड यू डोंट वांट दैट, राइट? यू डोंट वांट दैट। तो दैट इज व्हाई एनी टाइम आप जो भी करते हो, आप पहले से उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। So if it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcome, you can wave your fingers through the air and imagine that you're sprinkling magic dust। Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during the day। Suddenly किसी का कॉल आ गया, ने आपको ऐसा, अरे यार कहाँ, अभी मेरे मदर इन लॉ ने कॉल कर दिया, अरे मेरे बॉस ने अभी क्यों बुलाया रहेगा इस टाइम पे मुझे। आप ऑफिस में बैठे हो और आपके बॉस ने कॉल कर दिया, अंदर आओ मेरे कैबिन में, एंड आपके माइंड में पहले क्या अजम्पशन आता है? हमारा माइंड किधर चलता है? नेगेटिव की ओर। पता नहीं मैंने क्या गलती की होगी, क्यों बुला रहा है अभी मुझे मेरा बॉस,
तो before that, before going into that assumptions, we assume a lot. Remember, हम बहुत assumptions रखते हैं, पहले से ही हम अपने माइंड में अपनी खिचड़ी बना लेते हैं। अरे क्यों बुलाया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, अरे मैंने क्या। तो बिफोर दैट ओनली यू पुट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, लाइक ही हैज कॉल्ड मी, सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, दैट समथिंग गुड इज कमिंग आउट ऑफ इट। तो आपने पहले से अच्छी बात कर दी और मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया कि अच्छा परिणाम ही निकल रहा है, अगर वो मुझे बुलाया भी है तो मेरे बॉस ने अंदर ऑफिस कैबिन में। तो दैट वे यू आर गोइंग टू यूज द मैजिक आउटकम व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस ड्यूरिंग द डे, राइट? अब सडनली आपके घर में कोई बीमार पड़ गया और आपको कॉल आया घर से कि आपको ऑफिस में से आपको घर आना है। तो बिफोर अज्यूमिंग एनीथिंग, अरे बिफोर गेटिंग वरीड, बिफोर जस्ट से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, दैट ही इज कंप्लीटली वेल, आप पहले से ऐसे बोल दो तो यू विल सी द डिफरेंस। एंड व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, वेरी ऑफन वी कैन जंप इनटू कंक्लूजंस एंड इमीडिएटली थिंक दैट देयर समथिंग रॉन्ग। होता है ना, सडनली कुछ आया तो हम हमेशा नेगेटिव, पहले माइंड में जो थॉट आता है ना वो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता ही नहीं है। अरे पता नहीं अच्छे के लिए बुलाया होगा, पता नहीं को मेरी ननद ने कॉल किया तो पता नहीं कुछ अच्छी चीज के लिए कॉल किया होगा कि चल आज अपन दोनों बाहर जाते हैं। बट हम यही सोचते हैं पता नहीं आज क्या बड़बड़ करने के लिए मुझे फोन किया होगा। सो बिफोर दैट ओनली आप वो अप्लाई कर दो माइंड में कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, जो भी है आपका आगे। For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking that there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. तो बॉस ने आपको बुलाया, that come right away to the cabin, बट आपने कंक्लूजन क्या लगाया, डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग। एंड फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। What you think and feel, you will attract. What you think and feel, you will attract. What you think and feel, you will attract. ये मंत्र है ना, एकदम दिमाग में बिठा लो, बार बार आपके कान में गूंजना चाहिए कि what you think and feel, you will attract. What you think and feel, you will attract. तो आपने सोच लिया कि बॉस कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है और आप कैबिन में अंदर जा रहे हो, तो डेफिनेटली रॉन्ग ही मिलेगा आपको बॉस के पास से। बट आपने पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया कि यस समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। सो इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स एंड थिंकिंग यू माइट बी इन ट्रबल, टेक द अपॉर्चुनिटी टू मेक द मैजिक हैपन बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम। आज ही जो मेरे बॉस ने मुझे अंदर बुलाया ना, उससे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा निकलने वाला है। आपने आपके माइंड को पहले से ही बोल दिया कि आज मेरे बॉस ने मुझे अंदर बुलाया है ना, तो इसमें से डेफिनेटली कुछ अच्छा निकलने वाला है। एंड यू विल सी द डिफरेंस कि आप जब अंदर जाओगे, हो सकता है आपके बॉस आपको कुछ और बात कर रहे हो, आपको कुछ नया प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हो, आपको कुछ प्रमोशन दे रहे हो, या आपकी कोई तारीफ करने के लिए बुलाया हो। बट आपने पहले से अगर नेगेटिव सोचा तो you remember that the law of attraction works. You think and feel, you will attract to you. What you think and feel, you will attract to you. तो हमारी थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना, सही करनी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दीज प्रैक्टिसेस हेल्प यू टू मेक योर थिंकिंग राइट। सो इफ यू मिस योर बस और ट्रेन और योर वे टू वर्क, हम क्या करते हैं, अरे बस मिस हो गई, बस मिस हो गई, अरे मैं लेट हो गई, अरे मैं लेट हो गई। और मिस योर फ्लाइट or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. So what you can do is, instead of getting worried, getting irritable, you have to just say कि this is bad. Will you say this is bad? What will you say? Instead, see, if you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight or unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, what you will be grateful for? Unmute and say someone. What will you say here? What will you say? What will you say? No one?
आप बोलोगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कि मैं टाइम पे पहुंच गई, तो आप देखोगे आप टाइम पे पहुंच जाओगे। और थैंक यू दैट बिकॉज मे बी समथिंग गुड वॉज गोइंग टू हैपन, दैट इज वाई। एंड इफ यू आर पेरेंट एंड यू आर आस्क्ड टू अटेंड एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग एट अ स्कूल, आपको सडनली आपके बच्चों की टीचर या प्रिंसिपल कॉल करके बोलती है कि आपको मीटिंग में आना है, और आप टेंशन में आ जाते हो, पता नहीं अब किसके लिए बुलाया होगा, पता नहीं मेरे बच्चे ने क्या किया होगा। उससे बेटर है कि आप बोल दो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट आई एम मीटिंग द स्कूल प्रिंसिपल और द टीचर एंड शी इज टेलिंग समथिंग नाइस अबाउट माई चाइल्ड। Instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. So if you receive an unexpected phone call, email or letter and the thought flashes into your mind, आपके मन में कोई thought आता है कि suddenly जब call आता है, I wonder what's wrong, पहला हम दिमाग में सोचते हैं अरे पता नहीं क्या हुआ रहेगा, अरे मुझे ऐसा लगता है यार जरूर मैंने कुछ, तुम्हें मेरे हाथ से गलती हुई है कि आज मुझे बुलाया है बॉस ने अंदर, राइट? तो यू कैन जस्ट से that before thinking that way negative, you can just say thank you for the magnificent outcome for what he's calling me। इतना भी आपने बोल दिया तो आप देखोगे आपने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी आपके अंदर, और वो पॉजिटिव एनर्जी वो सामने वाले बंदे तक पहुंच जाती है। So you will see a different outcome before you pick up the call or open the email or letter. So most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. देखो most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for। यानी जितनी बार अगर आपको आज आप किधर घर देखने जा रहे हो, आपको घर लेना है और आप घर देखने जा रहे हो, तो आप ये काम कर सकते हो कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कि जो आज मुझे घर दिखा रहा है एजेंट, वो मेरी मनपसंद का हो और मेरी बजट में हो, और हो सकता है उसी दिन आपका ये घर का फाइनलाइजेशन हो जाए। तो जब भी आपको ऐसा काम करने जा रहे हो, आपकी मीटिंग है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपके कोई टारगेट्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं, आपको अगर आज बॉस ने बोला है कि यार 50 टारगेट्स आपको कंप्लीट करने हैं, सुबह में ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, आई हैव कंप्लीटेड माय 50 टारगेट्स। ये पता है मैंने मेरे एजेंट, ट्रैवल एजेंट को भी ये बात की थी, जब उसने मुझे बोला था ना कि हमको कंपनी में ये इश्यूज होते हैं, तो मैंने उनको भी ये बोला था कि अगर आपको ऐसा टारगेट्स दिया जाता है ना, तो यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल बिफोर हैंड कि आपने वो टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। And occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely great for it, you are using the mathematical law of attraction and you must receive. See, she's saying you must receive. उसका मतलब क्या होता है कि you must receive? मिलेगा ही मिलेगा। Yes, मिलेगा ही मिलेगा। She's saying that बट वेन यू आस्क फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम, क्योंकि मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब होता है बेहतरीन परिणाम हिंदी में, यानी सबसे बेस्ट मुझे आउटकम जो चाहिए इस चीज का, मैं उसके लिए थैंक यू लगा रही हूं। So and feel sincerely grateful for it. You are using the mathematical law of attraction जो अभी हमने ऊपर बात किया, and you must receive a magnificent, क्योंकि जब हम लॉ अप्लाई करते हैं हम कभी फेल नहीं होते। हमने देखा है ना कि मैथमेटिकल मैथ्स में जब हम कोई भी लॉ लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, उसका रिजल्ट हमको बराबर मिलता है, आंसर हमको बराबर आता है, राइट? इफ यू डू स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो और इफ यू डू मैथ्स, राइट, ज्योमेट्री में हम एग्जैक्ट मेजरमेंट, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, हम उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल नहीं बता सकेंगे, राइट? तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका 90 डिग्रीज में ही होता है, राइट? तभी हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला एंड देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेम वे you're applying the law of attraction, that is you think, you feel, your thoughts and feelings are working and you are using the gratitude power and you must receive a magnificent outcome। आपको magnificent outcome मिलना ही मिलना है, and you must receive a magnificent outcome back somewhere and at some time, guaranteed, she is saying। see, guaranteed यानी ये गारंटी है
कि वो चीज आपकी होनी होनी है जो आपने लगाई है। यानी जो आप, हम बोलते हैं ना, हम मैंने तुक्का लगाया था। व्हाट डू यू मीन बाय तुक्का लगाना? कि मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने तुक्का लगा के लगा दी। इसमें आपको ग्रेटिट्यूड लगाना है। इसमें आपको ये फील करना है कि मुझे जो चीज चाहिए वो हो गई पहले से। सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। और उसके बाद जो भी आपको चाहिए, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माई 50 टारगेट्स डन टुडे। मॉर्निंग में ही लगा दिया मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम। जैसे मैं मेरे ऑब्जर्वेशंस के लिए लगाती हूँ, थैंक यू फॉर द 10 ऑब्जर्वेशंस डन टुडे इन बोथ द स्कूल्स, ऐसे करके मैं सुबह में लिख देती हूँ। तो आई क्या होता है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आने वाले भी रहते हैं ना, वो हट जाते हैं और आपके काम पूरे आपके मन के हिसाब से होते हैं फिर। So whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, और थिंकिंग दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर समथिंग, कोई भी ऐसा सिचुएशन है जब आपको ऐसे लग रहा है यार ये पता नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, नहीं, तब भी आप इसको अप्लाई करो। सी शी इज सेइंग दैट व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग दैट देयर इज अ चांस टू प्ले, यार मुझे चांस ही लेना पड़ेगा, दैट टाइम पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। और थिंकिंग यू हैव नो कंट्रोल ओवर समथिंग, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको यार ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, for that, apply magnificent outcome and you see the results. Or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. I'm repeating this sentence again. Whenever you find yourself thinking, प्रशांत जी ध्यान से सुनना, whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking that you have no control over something, when you find yourself hoping something will turn out well, जब आपको ऐसा काश यार आज ऐसा ही होना चाहिए, आज तो मुझे ये रेस्टोरेंट में खाना खाना ही खाना है, आज मुझे यहाँ पे जाना ही जाना, मुझे आज ये क्लाइंट को कैसे भी करके आज मिलना ही मिलना है, वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, मुझे उसको मिलना है बट वो टाइम ही नहीं दे रहा, तो आज मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कि ये मुझे ये मीटिंग क्लाइंट के साथ में हो गई, उसका नाम लेके, एंड आप देखोगे कि यू विल गेट दैट। होपिंग समथिंग विल टर्न आउट वेल, जब हम होप करते हैं ना आज ऐसा होना ही चाहिए, remember that there's no chance for the law of attraction. Law of attraction chance नहीं लेता, it will give you what you have said, what you have thought, so you will get what you are thinking and feeling, क्योंकि आपने मन में ये विचार किया कि नहीं आज तो मेरी मीटिंग उसके साथ हो जानी चाहिए। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द मीटिंग विद दिस क्लाइंट, आपने उसका नाम साथ में लिख दिया, like thank you for the magnificent outcome with the meeting of this client Mr. Gupta, जो भी है, okay? Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, that is bad outcomes. हमको कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि हमने कोई चीज की और उसका हमको बैड आउटकम मिला, हमने कोशिश बहुत की, हम बहुत देर से बैठे रहे बट हमको उसका आउटकम बैड मिला। तो दैट वाज शी सेइंग कि ग्रेटिट्यूड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू। तो मैंने वही बोला ना कि अगर आप सुबह में आपके जो भी दिन भर के काम है उसके लिए भी आप अगर मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देते हो, आप देखोगे कि अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आने वाले रहते हैं ना अगर आपके काम में से, यू नेवर नो, यू स्टार्ट योर डे इन द वेल गुड एंड पॉजिटिव वाइब में, हम पूरा निकलते हैं घर से बाहर, हमको पता नहीं ऑफिस में क्या होने वाला है, राइट? तो हमको अगर हम पहले से इस चीज को लगा दे कि आज मेरा ऑफिस में दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरे जो जो काम है मैं उसको मैग्निफिसेंट आउटकम, एक कोई ऐसा काम है जो आप बहुत दिन से पेंडिंग रख रहे हो और वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, आप रोज सोचते हो आज मैं जाऊंगी ऑफिस में कंप्लीट करूंगी, आज मैं जाऊंगा, आज मैं इसको मिलूंगा, और वो नहीं हो रहा है, मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो एंड सी द डिफरेंस। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपेरिमेंट एंड कम एंड टेल मी बैक। प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो ना तो अभी तक आपने मुझे रोज आके शेयरिंग करना चाहिए कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। इवन if it is a very smallest, even if it is the smallest magic happening, please share your magics. उससे you are going to increase the power of your own belief and the power of belief of for others. तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्लीज शेयर करो, बोलो कि आज मेरे साथ में ये छोटा मैजिक हुआ, आज मैं इधर गई थी तो मेरे साथ में ये हुआ।
Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, that is bad outcomes, and it ensures you that you get what do you want, magnificent outcome. Today I have just shared this with one of my friend also to put apply when she asked me what shall I do. I'm going for my house. I'll let you know the result tomorrow. So when you are grateful for the magnificent outcome, you are using the universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. So see, when you are grateful for the magnificent outcome, आप thank you बोल रहे हो पहले, right? Thank you for the magnificent outcome. धन्यवाद ये बेहतरीन परिणाम के लिए. So when you are grateful for the magnificent outcome, you are using universal law. आप कोई ऐसा वाला कोई लॉ नहीं यूज कर रहे हो. यूनिवर्सल लॉ सेज गिव ग्रैटिट्यूड, बी इन गुड फीलिंग, फील दैट थिंग, एंड यू एक्सपेक्ट एंड बिलीव दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट थिंग. मेरे पास वो चीज ऑलरेडी आ गई है. बट अगर आपके पास वो बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप लिख देते हो ना, आपके मन में वो एक आ जाता, अरे मैंने लिख दिया, बोलो तो आज हो ही जाएगा मेरा काम. Do it that way. I do many times for my mundane routine also. Sometimes when I came back and now I'm seeing the houses in the mess and I have to clean each and everything again. 15 दिन मैं नहीं थी घर पे, तो कितना issue, because boys don't take care that way na. Though my maids were coming, and also I put magnificent outcome early in the morning. See, today I've targeted these 3 things, they should be done, and I found today, अरे वाह हो गया. So instead of taking stress, if you apply this, you will see the difference. So you are using universal law and changing the hopes and chance. जो आप बोलते हो ना काश ऐसा हो जाए, you are changing the hopes and chance to faith and certainty. आपको faith और आप certain हो जाते हो कि नहीं, मेरी ये चीज होनी ही होनी है, मेरी ये चीज होनी ही होनी है. और जब ये faith आपके अंदर आ जाता है ना, you will start seeing the difference. So see, again, I'm repeating, you are using the universal law with and changing hopes and chance. जब हम खाली बोलते हैं ना चांस लेके देखते होगा क्या नहीं, तो आपको चांस नहीं लेना है. आपने डायरेक्टली मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है कि ये चीज होगी ही होगी. आपको आपका किसी के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और आज आपको बात करनी है. ओके, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं, मैं फोन तो कर दूंगी, बट सामने से वो बात करेगी या नहीं करेगा. या क्लाइंट लास्ट टाइम बहुत एंग्री हो गया था, आज मुझे उसको फिर से बात करनी है, पता नहीं वो बात करेगा कि नहीं. पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो दैट ही स्पीकिंग वेरी वेल, द मीटिंग इज गोइंग वेरी वेल, द कॉन्वर्जेशन ऑन द फोन इज गोइंग वेरी वेल, वट एवर इट इज, जो भी आपका ये है उसको मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो. So knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. So when gratitude becomes the way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. किस किस को अभी तक बिलीव नहीं आया है? किस किस को बिलीव नहीं आया है कि ये चीजें होती है? Raise your hands, unmute yourself and speak to me. टुडे वी आर ऑन द डे 21. चलो बोलो, आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है या कुछ क्लैरिटी नहीं है, बोलो मुझे कि मुझे बिलीव नहीं आ रहा है अभी तक. किसी को है ऐसा क्वेश्चन? प्रशांत जी, रमेश जी, कोई चीज ऐसी आपके मन में आती है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं आया है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है. नहीं है ना? बिकॉज इफ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस प्रॉपरली एंड इफ यू आर हैविंग दैट फीलिंग, अभी तो आप खुश खुश रहना शुरू कर दिए होगे, आपको एक अलग टाइप की फीलिंग आती होगी. ओके, सो यू आर ऑन जी द मैम. फर्स्ट डे टुडे, राइट? तो ये फीलिंग्स, एटलीस्ट फीलिंग्स आनी चालू हो जानी चाहिए कि हाँ यस ये होता है, इसका बिलीव है, ये मैं इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है मेरी प्रैक्टिसेस में. तो अगर मिरेकल्स नहीं दिख रहे हैं ना, तो आपकी प्रैक्टिसेस में कमी है. So you have to take that responsibility also कि I am lacking somewhere in the practices. जब आप लग के प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप मन से रोज प्रैक्टिस करोगे, see, to get something you have to give something, right? So ask yourself, what am I ready to give? What I'm ready to give up? मेरा मी टाइम, मेरा टीवी का टाइम,
मेरा चैटिंग का टाइम, व्हाट व्हाट एग्जैक्टली आई एम रेडी टू गिव अप, पूछो अपने माइंड को, और आपका माइंड खुद ही बोलेगा आई डोंट वॉच टीवी. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Important, make it a daily habit. रोज बोल तो दो, नहीं लिख सकते तो बोल तो दो, पहले एक दो बार प्रैक्टिस लिख के करो. दैट ब्रिंग्स द बिलीफ. So the more you practice magnificent outcome and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. आप देखना शुरू कर दोगे कि आपके सामने ऐसे situations आ ही नहीं रहे हैं जो आप नहीं चाहते हो. आपके सामने अच्छे ही situations हो रहे हैं, सब चीजें अच्छी ही हो रही है. So you won't find yourself in the wrong place at the wrong time. होता है ना, कितनी बार हम अटक जाते हैं ऐसे. तो आप जब ये प्रैक्टिस से सच में होता है. दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस. एंड नो मैटर what happens in your life, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Okay, and no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. कोई भी चीज दिन से लेके रात तक, घर की भी कोई छोटी मोटी चीज लगा दो, उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम. साफ सफाई करनी है, क्लीन करना है, कोई किसी को मिलने जाना है, आज मेरे इतने सारे लोगों को जाके मिलना है, मेरे घर में पार्टी है आज, लोग आने वाले हैं. बिफोर हैंड अप्लाई magnificent outcome that the party has gone well, all the people who had come in the party are happy, and we have enjoyed a lot. So less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place and wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. आपको believe certain है, because it's a guaranteed formula you're using. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. आज की practice आपकी ये रहेगी कि आप 3 ऐसे सिचुएशन को ढूंढोगे जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या आप चाहते हो उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें का आउटकम हो. मे बी कि यू वांट टू गो एंड टॉक टू योर बॉस अबाउट योर इंक्रीमेंट, और यू वांट टू टॉक टू योर बॉस अबाउट कि काम बहुत ज्यादा हो रहा है, आई वांट द वर्कलोड टू बी लिटिल लेस. Before you want to talk to him or her, you have to make that up magnificent outcome लगा के जा रहे हो कि the meeting with him is going very well and he's understanding what I'm trying to put forward. जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा. That is the meaning of magnificent outcome. So you can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, okay, an exam or a doctor's appointment. आपको डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, या कोई चेकअप है, या कोई MRI निकालना है, स्कैन के लिए जाना है. पहले से बता दो कि मेरा रिपोर्ट्स बहुत अच्छा आने वाला, मेरा स्कैन बहुत टाइम पे हो गया, बहुत इजीली मैं बाहर आ गई, एंड एवरीथिंग इज गॉन वेल. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Humdrum का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी, बोरिंग, जो चीजें करने का दिल नहीं होता है, रोज पेंडिंग पड़ी है, हमको करना है. जैसे वार्डरोब साफ करना इज द मेजर थिंग फॉर मी. आई गेट वेरी इरिटेटेड व्हेन आई हैव टू क्लीन द वार्डरोब. सो वे क्या करती हूँ, मैं हमेशा मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देती हूँ पहले से. मैं लिख देती हूँ मैजिकल लिस्ट में पहले से कि यहाँ मुझे ये करना है. एंड देन आई पुट म्यूजिक एंड आई पुट सम नाइस सॉन्ग्स एंड देन आई क्लीन इट. तो मेरा वो जो नेगेटिव वाला माइंडसेट है ना कि ये मुझे क्लीन करना पड़ रहा है, वो हट जाता है. So at the beginning today, choose 3 separate situations. She's saying it could be anything. You can start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. यानी जो रोजमर्रा की भी जिंदगी है, आपको करने में कंटाला आता है या बोरिंग लगता है. कोई ऐसा काम होता है ना रोज में इसमें कि मुझे बहुत इरिटेशन होता है, नहीं करना है.
Because when the magic happens to those humdrum activities, you will really convince that you attracted the magnificent outcome. तो ये भी चीजें जब छोटी मोटी हो जाएगी ना आपकी, तो आप देखोगे you will have that, you will be convinced कि yes, it really works. So for example, you could choose your drive to work, doing the ironing, simple work, ironing भी अगर करनी है, पेंडिंग है, वो उसके लिए भी बोल सकते हो कि मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा आइनिंग ऑफ द क्लोथ्स टाइम पे हो गया। तो आप देखोगे वो चीजें टाइम पे हो जाती है। गोइंग टू द बैंक और द पोस्ट ऑफिस, पिकिंग अप किड्स, पेइंग द बिल्स और कलेक्टिंग द मेल। मेक अ रिटन लिस्ट of 3 situations you have chosen for the magnificent outcome. Use gratitude's magical power, and as you write one, imagine that you are writing about each one after it has happened. आपको ऐसे लिखना है कि वो हो गया है, right? So thank you for the good business client meeting with this person, Mr. Gupta, जो भी है, ऐसे आप लगाओगे कि it is already done. आपको जो वो मीटिंग में से आपको क्या चाहिए, right? That he gets convinced for whatever you are asking or whatever you want. So whatever you want, you have to write it in that format, that as if it has really happened. So thank you for the magnificent outcome too, or dash. Thank you for the magnificent outcome too, dash. dash का मतलब आपको जो भी करना है, right? So you can write that. For the second step of this magical practice, the first step is you're going to write as if it has already happened. For the second step of this magical practice, you're going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcome as well. दिन में भी सडन आप ऑफिस में हो, आप बैंक में हो, आप घर में हो, कोई काम कर रहे हो और सडनली कुछ ऐसा रॉन्ग कोई चीज होने वाली लगती है आपको, ऐसा कोई कॉल आ गया, before that only you say, you put your magnificent outcome orally in your mind, that this is going well, this phone call is going well, something good news is coming to me. You can say those words also, instead of saying कोई फोन कॉल आया तो अरे कुछ अभी रॉन्ग ही होगा, अभी मुझे कुछ चिल्लाएगा या कुछ, पहले से बोल दो, आई एम गेटिंग गुड न्यूज टुडे. So you could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 mails or 3 letters. This is basically giving you more of office type things, that you could do this practice before you take 3 phone calls. Suppose you're in your office and you have to take the phone call, और अभी आपका वो बंदे का फोन है, आपको ऐसा लगा पता नहीं आज क्यों फोन कर रहा है. So before that only you say the magnificent outcome for it, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, or before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you chose, as it is about practicing gratitude for the magnificent outcome on each little unexpected things. छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो आपकी नहीं हो रही है, आप उसके ऊपर मैग्निफिशेंट आउटकम लगा सकते हो. आपकी कैब बुक नहीं हो रही है, so thank you for the magnificent outcome that I've got my cab on time. Easy, simple thing के लिए भी आप यूज कर सकते हो. आप लेट हो रहे हो, आप बिफोर यू नो सेइंग कि मैं और लेट हो जाऊंगी, मैं और लेट आऊंगी, आज तो डेफिनेटली लेट हो गई और लेट पहुंचूंगी, ऐसे बोलने के बजाय थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम दैट आई हैव रीच्ड ऑन टाइम. एंड आप देखोगे कि यूनिवर्स इज कमिंग टुगेदर टू हेल्प यू, टू रीच ऑन टाइम, बिकॉज आपने ग्रेटिट्यूड का पावर लगाया उसके ऊपर. So this part of the practice is not so much about unexpected events, but it is like you choose practicing gratitude or for the magnificent outcomes on the little unexpected things. And each time an unexpected event arises, just close your eyes and briefly, if you can, and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome. Suddenly जब कोई चीज होती है, right? Unexpected आ गया सामने से. What are you going to do? Just close your eyes. मैंने बोला ना कि orally भी कर सकते हो आप. Just close your eyes and just say,
थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। आज ये क्लाइंट सामने से आके चिल्ला रहा है ना, वो चिल्ला रहा है आपको, आपके मन में आपने क्या बोला? थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि मैंने इसको पटा लिया है। आपने सिर्फ आपके मन में ये बोलना है, आप देखोगे सामने से वो बंदा आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। So you can do this magical practice too much. See, she's saying you can do too much. Too much means every day. Because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you find yourself in a situation where you are hoping for good outcome, जब आप पहले से आपको ऐसा फील हो रहा है ना, इसमें से तो ये अच्छा नहीं, मुझे ये घर बेचना है पर ये घर है ना मेरा इतने में ही बिकना चाहिए, आपके मन में क्या है कि ये घर इतने में ही बिकना चाहिए, तो आप कौन सी भी ऐसी सिचुएशन में हो, इफ यू राइट मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर इट, यू विल सी द डिफरेंस. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for good outcome, you are hoping for good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn into the magical power of gratitude and make magnificent outcome a certainty in your life. तो काश ये ऐसा हो जाए, काश ये ऐसा होना चाहिए, ये होने के बजाय आपने लिख दिया मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस इज ऑलरेडी डन, यानी ऐसे फॉर्मेट में लिखना आपको कि जैसे वो चीज ऑलरेडी हो गई है, राइट? हमने डे 13 में भी सीखा था हमारे ड्रीम्स में कि when we write our dreams in the format कि it is already done, उसी तरीके से मैग्निफिसेंट आउटकम को भी आपको जो भी इशू है, आपको जो भी सिचुएशन है, उसको आपको लिखना थैंक यू, और जस्ट राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट ईयर, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू मीटिंग ऑफ दिस क्लाइंट, दिस वट एवर इट इज, वो बाकी का आप सेंटेंस कंप्लीट कर लो, वट एवर सिचुएशन इट इज. सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21, मैग्निफिसेंट आउटकम, जो आप रोज कर रहे हो. काउंट योर ब्लेसिंग्स फॉर योर ग्रेटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. At the beginning of the day, choose 3 things or the situations that are important to you, which are important to you. आप चाहते हो कि इसमें आउटकम मेरे हिसाब से आए, जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वैसे ही उसका आउटकम आना चाहिए. वो चीजों को पहले उठाओ, वो चीजें लिखो एंड उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो. Okay, list your 3 things and write each one. See, she's saying write because first time you're doing it, write it. List 3 things and write each one as though you are writing after it has happened, कि आपको मिल चुकी है वो चीज, आपकी वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है, आपको बॉस से बात करनी थी कि अब मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, वो हो गया है. तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दैट आई स्पोक टू माई बॉस वेरी वेल फॉर माई इंक्रीमेंट एंड ही हैज लिसन टू मी. आपको सिर्फ इतना लिखना है. And you will see that you have received that. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for the magnificent outcome. दिन में भी देखना, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, वहां पे भी आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो इमीडिएटली. Each time, close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome too. जो भी आगे आपको लिखना है वो थैंक यू. जब भी कभी कोई अनएक्सपेक्टेड भी चीज हो जाती है, से घर में सडनली कोई बीमार हो गया, सडनली कोई आ गया, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और सडनली कोई मेहमान आ गया एंड आपको मन में, आप पता नहीं अभी ये कितने दिन रहेगा, तो पहले से लगा दो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, ये आज आया है कल चला जाएगा. करके देखना, मैंने 2 बार करके देखा है एंड यू विल सी दैट ऑल्सो हैपेंस. So just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. आपको क्या करना है ना, see, the more you do these practices in the fun way, now you will really enjoy it. क्योंकि आपका बिलीव भी बढ़ता जाता है, आपका प्रैक्टिस भी बढ़ता जाता है उसके साथ में. तो आप जितना बिलीव के साथ करोगे, जितना आप उसको बिलीव में लाके करोगे एंड फन लेके करोगे, एंजॉय करके करोगे, मस्ती करके करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस. एनी अदर क्वेश्चन कमिंग? मैम, ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम है, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए ही लिखना है? नहीं, प्रॉब्लम्स के लिए नहीं सिर्फ लिखना है. आपको आपका कोई काम भी नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि वो काम, मैं जो काम मेरे मन से चाहती हूँ, यानी मेरे तरीके से हो, राइट? मैं चाहती हूँ कि ये काम मेरे तरीके से हो,
जो मेरे मन में है। एग्जाम्पल, मुझे मेरा घर लेना है पर मेरी बजट 40 lakhs की है। मुझे एक पर्स खरीदना है, मेरी बजट 2000 की है, राइट। और मुझे जो जो पसंद आ रहा है वो 4000 में मुझे आ रहा है, बट आई वॉन्ट द मैग्निफिशेंट आउटकम। में जब अप्लाई करती हूँ, आई एम गेटिंग दैट सेम टाइप ऑफ पर्स इन द 2000, दैट वे। This, Thank you for the this, magnificent outcome that I have got my purse in my own budget. so this I can put it to a travel planning according to me also, right? Yes. Yes, you can do that also. You can do that. So it is not for the negative situations only, it is for your humdrum रोज का activities also. कि किसी से मीटिंग है, बॉस को जाके मिलना है, घर में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, उनकी पीटीएम। आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी लिस्ट है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है यार आज तो ये 3 काम हो ही जाने चाहिए, मैं रोज पेंडिंग छोड़ रही हूँ, रोज पेंडिंग छोड़ रही हूँ। अप्लाई मैग्निफिशेंट आउटकम एंड सी, और अब देखो कि उस दिन वो काम आपके हो ही जाएंगे, सर्टेनिटी से होता है। I wrote for Ashwin ma'am also that I'm meeting her and the day is going very well. I'm enjoying a lot and it happened everything the same. So आप जैसे मैग्निफिशेंट आउटकम पहले से लगा लेते हो ना कि मैं पहले से फ्लाइट में अच्छी पहुंच गई हूँ, I've got a comfortable seat and I'm enjoying my flight में, you will see everything works out that way. If you have a belief, आप डाउट लेके आओगे पता नहीं होगा क्या नहीं, पता नहीं होगा क्या नहीं, तो फिर नहीं होता है। बट अगर आपने मैग्निफिशेंट आउटकम लगा के आपने छोड़ दिया कि ये हो गया है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट इट इज ऑलरेडी हैपन, you know, thank you for the magnificent outcome that my you see, when I'm doing the reports, six schools are under me, so I have to prepare so many teachers reports. So sometimes I get बोर हो जाती हूँ, कंटिन्यू लैपटॉप पे काम करते करते, then I start feeling bored. Then what I say, I end of the day, I target for tomorrow by writing thank you for the magnificent outcome that tomorrow I have finished at least 10 reports. एंड आई वो फिर ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं कि आई माई सेल्फ डोंट कम टू नो। बट जब हम वो बोर हो जाते हैं एंड दैट नेगेटिव थिंग हैज कम इनटू योर माइंड कि यार सेम काम 2 दिन से मैं वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ, एंड यू डोंट पुट मैग्निफिशेंट आउटकम। मैंने वो भी करके देखा है कि मैंने जब नहीं लगाया है तो वो कितना मुझे नेगेटिविटी में लेके गया है, एंड बोर होना शुरू हो जाता है। बट द मोमेंट यू हैव पुट मैग्निफिशेंट आउटकम, फटाफट हो जाता है। Thank you for the magnificent outcome. I have won the quiz competition. Yes, you can write that also. You express more further also. You have won the quiz competition in what? First prize, second prize, what? What you want, आपका मन चाहा, आपको जो चीज चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस करो और वो लिखो कि वो मेरी मर्जी से जो मुझे चाहिए वो हो रहा है। प्रशांत जी के मन में ये सवाल आता रहेगा, जो मेरी मर्जी का नहीं होगा तो वो भगवान मुझे देगा क्या नहीं? आया ना प्रशांत जी? Not कि वो exactly. आउटकम मेरा निकलेगा क्या नहीं? आता है, सबके मन में आता है ये डाउट। बट इफ योर बिलीफ सिस्टम इज देयर, द थिंग्स हैपन। एंड जो थिंग्स नहीं छोड़ने वाली रहती है ना, देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ये भी ध्यान रखना। बट जो चीजें आप रोज की आपकी ऑफिस में है, आपके घर में है, हम रोज इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, बट उसमें भी कितनी बार हमको बोरियत आ जाती है, कभी मन नहीं होता है करने का। यू नो आई जस्ट नाउ क्लीन माई सन्स रूम, तो बोरियत। तो मॉर्निंग में मैंने भी आज मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दिया था कि टुडे आई एम टारगेटिंग माई सेल्फ टू फिनिश ऑल दिस 2-3 वर्क्स टुडे, तो आई फिनिश। तो जब आप मॉर्निंग में ही ये चीजें लगा देते हो कि हाँ ये तो आज मुझे कंप्लीट करना ही है, हो गया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली होता है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कर रही हूं, आपको ऐसे बोलना है कि आज मैंने कर दिया है ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी डन। सो when you have said to your mind, it is, see, the day one I'm telling ki power of gratitude we are using thinking, we are using feelings, thoughts, but आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपने जो उसको कमांड दे देते हो ना कि ये चीज हो गई, तो वो देखो वो मैग्निफिशेंट आउटकम ने आपने लगाया, आपने थैंक यू लिखा, बट वो हो जाता है बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड नाउ। तो आपका माइंड वो उठ के एक्शन लेगा ही लेगा। कितनी बार होता है ना, जिम जाने का दिल नहीं होता है, यू डोंट वांट टू कुक समटाइम्स, राइट?
मैं तो कितनी बार किचन में मुझे कुकिंग से भी अभी अभी बहुत ये होता है, तो आई यूज दिस, आई जस्ट फॉर टू पीपल अगेन टू कुक, एंड वो समटाइम्स आई फील वेरी बोर्ड, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बोल देती थैंक यू यार, आज मेरा कुकिंग बहुत जल्दी हो गया। ओनली दैट मच ऑल्सो इफ आई डू ना, आई फिनिश इट ऑन टाइम। Even when you're getting late, and you feel things are not working, just say thank you for the magnificent outcome. I have reached on to the office on time. And you will see कितना भी आप घर से लेट निकले हो ना, आप आपके ऑफिस के टाइम पे बराबर पहुंचोगे। When I go to Pimpri Chinchwad areas for this QC observations, I do that also. कभी मुझे अगर लेट हो जाता है ना घर से निकलने, कभी कभी कैब बुक होने में टाइम लगता है, I have targeted my time and I'm very committed person. तो मैं immediately बोल देती हूँ thank you, that I have reached on time. And वो होता है क्या, reach on time. फिर वो ड्राइवर जल्दी भगाएगा, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वो यूनिवर्स का काम है। मैंने मेरा आउटकम लगा दिया। So do this. This practice is really amazing. These all practices, magical to-do list, magical footstep. We feel it is very light. हम ध्यान नहीं देते हैं, हमको ज्यादा पैसा, रिलेशनशिप, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है, राइट, योर हेल्थ। बट दीज प्रैक्टिसेस कैन बी यूज्ड इन ऑल योर एरियाज। यू कैन यूज इट इन योर हेल्थ, यू कैन यूज इट इन योर करियर, यू कैन यूज इट इन योर मनी, यू कैन यूज इट इन योर रिलेशनशिप्स। तो अगर रिलेशनशिप भी वर्क नहीं कर रहा, यू कैन, कि आज मुझे ये बंदे से बात करनी, ये क्लाइंट के साथ में मेरा झगड़ा हो गया था लास्ट टाइम, और आप चाहते हो अभी उसके साथ में मेरा बातचीत अच्छी हो जाए, क्योंकि मुझे उसको पटाना है, लाना है मेरे को उसको बिजनेस में, आप इमीडिएटली बोल दो पहले से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट दिस क्लाइंट इज अगेन बैक विथ मी एंड इज हैज डन बिजनेस विथ मी। आप देखो होगा ही होगा वो। मैंने बहुत सारी चीजों में अप्लाई किया, बहुत सारी चीजों में, and I swear by it. This I time का always thing, say no, I when I have to experience go. myself first and then only I tell the people. नहीं तो तब तक मैं खुद नहीं बोलती हूँ, मैं खुद नहीं बोलती हूँ जब तक मैं हर एक चीज का है ना पहले खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एंड अपने आप को पकड़ती भी हूँ अगर किधर रॉन्ग होता है तो, अरे हाँ, अरे वाह शानी, आज तो तूने ऐसा बोल दिया, या नहीं, यू आर रॉन्ग, ऐसे भी पकड़ती हूँ। बिकॉज समटाइम्स जब सामने वाला ऐसे बात कर, आजकल मेरा बेटा मुझे बोलता है, अभी शाम को चाय के टाइम पे ही भी वो तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, तब भी डोंट स्पीक नेगेटिव। आई वाज टेलिंग कि आज मेड ने ना देख नीचे से वहां से नहीं लिया बिकॉज आई लाइट डाउन दैट टाइम, तो ही वाज टेलिंग मी, मेड डोंट स्पीक नेगेटिव। Imagine your children saying, catching you that you are a practitioner and you're saying negative. I said, I'm not saying negative, but I said that next day I'm going to tell her that she needs to clean from there. Like, तो बट सी, अपने मुंह से कभी कभी ऐसी चीजें निकल जाती है कि वी डोंट रियलाइज कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं, एंड ओनली व्हेन समवन, मैं बोलती हूँ ना कि सामने से जब अपने को कोई पकड़ता है ना तब समझ में आता है। So children also have started doing that to me. Yes, Akila ji, you were saying something. No, I was just saying that this timing, what you're saying, no, to reach on time and all, that has like worked for me a lot. Very good. Very Because good. I had to go for to taking the exams and all, and I fix a time, like I will come by this time. And once it happened, like I was feeling I'm getting late. I had to go like 3 places together. So by 10:30, 10 o'clock, 10:30, I had to reach. But then I left 5 minutes late. I thought I don't know how, but not 10:30 I reached. That is what हम बोलते हैं कि लेट That हो has गया। happened quite a few times, not only once, but before also. I can't even remember now. But Yeah, yeah, because this does see, you work, use the magical power of saying thank you that I have reached on time. You told your mind कि चल ठीक है 5 मिनट लेट, बट अगर हम बोलते अरे लेट हो गया और लेट हो गया, अरे लेट हो गया, अरे लेट हो गया, यू विल सी कि आपको और ज्यादा लेट होगा, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगी, ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। बट अगेन इफ यू हैव ऑलरेडी टोल्ड योर माइंड आई एम रीचिंग ऑन टाइम, एंड यू विल सी यू विल रीच ऑन टाइम। माइंड एवरीथिंग, योर माइंड इज डूइंग एवरीथिंग, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज है, आपका day before yesterday also my head was paining, and I just kept my hand and just said thank you, thank you, thank you, let me know what is happening, let me know then I realized कि yes, my nose has got blocked.
यू आस्क योर बॉडी योरसेल्फ, आपकी बॉडी खुद आपको बताती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है क्या चीज हो रही है हमको खुद को पता नहीं होता है। बट मैंने वहां पे बहुत कोल्ड चीजें मेरी बेटी के साथ में खाया था, तो नाउ आई वाज रियलाइजिंग वहां पे गर्म था, यहाँ पे पुणे में आने के बाद ठंडा लगा थोड़ा सा। इनिशियली व्हेन आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो थोड़ा वेदर चेंज भी हुआ, राइट। सो आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड आई एम ओके। फ्रॉम मॉर्निंग आई एम सो एक्टिव टिल नाउ। क्या आई माई सेल्फ इन वंडरिंग आज मैंने इतने सारे काम कर लिए। So you see it everything in the mind. The moment you train your mind, na ki yes, you can do it. Yes, it is there, and it will be done for you. You will see that it is done for you. आपका बिलीव उतना होना चाहिए बस। एंड ट्रेन योर माइंड। ट्रेन, डाउट आएंगे। सी द लॉजिक माइंड है ना, लॉजिक माइंड ऐसा झगड़ा करता है सबकॉन्शियस माइंड के साथ में। लॉजिक माइंड इज व्हाट? अ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड नीड्स ऑल रीजनिंग, नीड्स ऑल लॉजिक। तो वो ऐसे झगड़ा करता है, वो उसको आगे आने ही नहीं देता है। तो हमको लॉजिक माइंड को है ना पहले शांत करना होता है। कॉन्शियस माइंड को जब भी डाउट आता है ना, इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसे बोलने का उसको। एंड यू लेट योर थिंग्स रीच टिल द सबकॉन्शियस माइंड बाय सेइंग इट, yes this will be done and you will see this, because see your अपना भरोसा अपने भगवान के ऊपर, जिसको भी आप मानते हो, जो भी इष्ट को मानते हो, उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको मानते हो जो भी है, and that is why I say that there are many people who go to this session, they go to another session, then they go to this, इधर नहीं मिला, अरे इसके पास। आपके प्रॉब्लम सबके पास नहीं हो, सॉल्व सॉल्यूशन सबके पास नहीं होते हैं। यू फॉलो वन पाथ, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू विल फाइंड योर सॉल्यूशंस ऑन योर ओन। नहीं तो हम क्या करते, ये नहीं, हम जैसे बीमार भी पड़ते तो हम क्या बोलते, एक डॉक्टर के पास से अच्छा अच्छा लेट्स गो टू द सेकंड डॉक्टर, टेक अ सेकंड ओपिनियन, राइट। यस प्रशांत। एंड हम कभी फिर दूसरे इसके पास जाते हैं। यस प्रशांत जी, यू कैन लीव। एंड हम कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हम सोचते कि नहीं ये डॉक्टर मेरे को हील करेगा। बट हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर है ऑलरेडी वो हीलिंग का पावर। पहले हम तो जाने के अंदर हो क्या रहा है। एंड जो जो आप अभी बाहर देख रहे हो, even if you're sick, even if you're not well, if you're not having a good relationship, it is all because inside that is there still. Inside already you have bought that thought process. Okay, I'm not well, I'm not well, I'm not well, I'm not well. If you'll start saying, I'm well, I'm healthy, I'm healthy, I'm slim, I'm slim, I'm fit, I'm energetic, आप slim और fit हो जाओगे थोड़े time में. But because then your mind will take you to that type of action. But हमने बोलना भी तो जरूरी है ना. You have to train your mind for that. अगर आप ट्रेन ही नहीं करोगे अपने माइंड को, you will never get those results. आप बोलते मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, तो आप बीमार ही रहोगे। मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, आपका सिर और दुखेगा। माई नीज आर पेनिंग, माई नीज आर पेनिंग, राइट। मैम कहना है यस। ये जो आप बोल रहे हो ना सर दुख रहा है, ये मुझे भी बहुत माइग्रेन का इशू होता है। एंड व्हेनेवर मुझे होता था, होल डे आई यूज्ड टू से मेरा सर दुख रहा है, सर दुख। डे बिफोर यस्टरडे भी मुझे हेडेक हुआ, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सो आई वाज एबल टू बेयर इट। Yes, when you remove your focus from that and you focus कि I'm well, I'm okay, I'm well, I'm really well, आप देखोगे आपका वो चला जाएगा पेन। I don't eat a single pill, कुछ भी हो जाए, I don't eat। मैं छोटी छोटी बात के लिए कभी कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। It been 3 years now, 3 to 4 years. 21 I had got operated. After that, I've not taken a single pill. मैं, मेरी बेटी मल्टीविटामिन के लिए बोलती है ना, तो भी मैं पाउडर बना के ले लेती हूँ ऑफ दैट मखाना, तिल एंड एवरीथिंग, flaxseed and all that, and I put that in the milk and I have it. That is my calcium. That's why. But I don't eat pills, because pills today you cannot say also about pills, though किसी को नेसेसरी होता है तो लेना पड़ता है। बट जब अपने आप को, आप अपनी बॉडी को पूछो कि मुझे क्या हो रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आपकी बॉडी खुद आंसर देती है आपको। द हीलिंग पावर इज ऑल्सो इनसाइड, इट गाइड्स यू, इट टेल्स यू, एंड ईच वन हैज दैट पावर। ऐसे नहीं कि सिर्फ मारिया के पास है या धारा के पास है, ऐसे नहीं। इट इज लाइक विथ एवरी वन हैज दैट पावर। ओके, विल वाइंड अप।
No other question coming, na? No, ma'am. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, everyone. God bless you all for joining. And may God give you all that you require in your life. God bless you with abundance and good health and all that you want. Thank you. Thank Thank you. Thank you. thank you, Maria. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Maria. Thank you. God bless you. Thank you.